Good afternoon, friends. This afternoon, the major issue that we are flagging is the job loss which this country is suffering from right now, and especially on the occasion of the last evening's interview of our finance minister to Reuters, where it's discussed everything except the national emergency on joblessness and the crisis which country is going through. The crisis which country is going through is basically a symptom of the bad policies which UPA has followed for years, and without going into the past, and that I would say the ancient history or the double-checkered history of Mr. Chidambaram, I'll only deal with the double-checkered history which UPA 1 and UPA 2 policies have brought on or imposed upon the country. In that sequence, we are very, very concerned about the massive job loss which this country has been made to undergo for past 9 years. And in this, UPA government has not initiated a single infrastructure project that could create jobs on large scale, which was required. And by 2001 census, we showed that Vajpayee government's initiative of Golden Quadrilateral Triangle was a project which was a National Highway Authority of India's project, and that was an ambitious project which gave several jobs across the country. And we had been able to achieve the GDP of 8.4, though our inheritance was about 4 point some odd percent to 5.23, and post that we brought it to a level of 8.4, 8.6% so far as the encounters of figures are concerned. And after inheriting 8.6% of GDP, today's GDP is 4.8 in recent past. And this is the history of this Congress party. And without speaking much about the checkered history, whether the double checkered history is of leaving the Congress party, coming back again as Home Minister, changing the affidavits in various encounter cases, giving color to terrorism, to devaluation of rupee, which has happened just in recent past, without really flagging those issues. Going back to another issue which the Congress party is good at, that is spreading falsehood. The RTI was not a job of the Congress party or Congress's gift to India. The RTI movement was started by several NGOs and pressure groups, which started as late as 1990, and various state governments implemented it in suitable format. RTI was given legislative teeth way back by the NDA government, but Congress party has never stopped falsely claiming the credit for it. 1999, NDA government issued an administrative order enabling citizens to inspect and receive photocopies of files. HD Shourie Committee draft law was reworked into the Freedom of Information Bill 2000, and it was passed in December 2002 and received presidential assent in 2003 as the Freedom of Information Act 2002. The NDA government, during 6 years of rule, was able to create more jobs than UPA did in 8 years, indicating that UPA's high growth regime did not create sufficient jobs. The fast sinking boat, that is the Indian economy, is a far cry from flourishing and growing one that 1999-2004 government was, and it created 60.7 million jobs. UPA government, on the other hand, from 2004 to 2009, created only 2.7 million jobs, and data source is National Sample Survey of India. The following set of numbers shows
that the young have read the grim job market. Andhra Pradesh has over 700 engineering colleges and 3.5 lakh seats, the highest in any Indian state. But just 2 lakh seats were filled up, and 20% of the class of 2013 have got jobs. When young Indians give up a chance of getting an engineering degree, we definitely know that there is something largely wrong with the economy, and the finance minister is directly responsible for the acts of the government. In Maharashtra and Karnataka and Tamil Nadu, 2 lakh engineering seats have had no takers in this academic year. 25% of Maharashtra's 46,000 MBA seats have been filled. And unsurprisingly, many engineering colleges and business schools are closing down. So much for good economy. And we've seen the kind of fabricated reports which are being passed off by this government. 116 technical institutes have sought permission from the Department of Technical Education to close down in just about 6 months of this year, compared with 100 in the whole of 2012 and 13. This is happening because of UPA's ruinous policies which have created job emergency in India. Mr. Chidambaram's policies have virtually destroyed SMEs, or I can put it as MSMEs, which was creating about 83% of jobs in unorganized sector. If we match the period within which the rupee devaluation or depreciation have happened steeply, it also draws parallel with Mr. Chidambaram's appointment as the finance minister. UPA's policy has created jobs, definitely, but unfortunately those jobs have been created in China. We've seen the highest trade deficit which any two countries can have, that is between India and China during UPA 1 and UPA 2 regime. And Mr. Chidambaram has been the finance minister more than once. And not only that, the latest report suggests that the Chinese incursions, and they are nibbling at our land, and a weak New Delhi is not able to deal with the symptoms which may appear in the form of Pakistan and China, and constant nibbling has led to loss of about 2,000 square kilometer territory, knowing very well that this government is a weak government and which cannot really deal with the issues concerning the borders of India. We have faced extremely difficult situation in our times when NDA was in power, and yet we gave India the requisitioned place, whether it was economy, creation of jobs, or giving a boost to its border policies. In the recent history of this country, it is suggestive that weak New Delhi has not been able to give answers to any of the aspirations of the aspirant young India, whether it's skill training, the demographic dividend that we were talking about. Today it is all lying waste. A number of youngsters who are added every year to the job market are not even getting absorbed in the job market. And that is the biggest crisis this country is faced with. And going back to the escape velocity, all I can say is whether it's the escape velocity of Jupiter or of Pluto, but definitely no amount of help will help the present government to escape the responsibility of damage that it has done in the past many months to the Indian economy. And the present government is looking at an escape route by discussing the escape velocity, but it is not likely that it will escape the wrath of this nation or the citizens of this country. The statement coming from the Vice President of the Congress Party, I think he needs to understand that
whether it's taking credit or looking for escape routes, it's not going to work, because by discussing the escape velocity, 2014 is still a couple of months ahead. 2013 is what will show them the exit route much before 2014, and the loot and scoot policy will not be working very well while discussing the escape velocity. मित्रों, आज जिस विषय को हम लोग फ्लैग करना चाहते हैं वो बेरोजगारी है। इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी और भयंकर समस्या है तो वो बेरोजगारी की समस्या है, जिससे पूरा समाज और हमारी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है, और उसका अपश्रय केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को यूपीए 1 और यूपीए 2 के रूप में जाता है, क्योंकि हर समय इन्हीं की सरकार पिछले 9 वर्षों से चल रही है। जिस प्रकार से इस सरकार की आर्थिक नीतियों ने इस देश में काम किया, उसकी वजह से जो बेरोजगारी की समस्या है, जो एक हमारे लिए बेहतरीन मौका था जब 8.6 जीडीपी की हैसियत से इस देश के पास थी और यूपीए की सरकार बनी, आज उसको 4.8 तक पहुंचा दिया है। रुपए की कीमत लगातार गिराई गई है, बावजूद इसके कि आरबीआई के पास वो तमाम डेटा उपलब्ध है जिसके तहत उस करेंसी को देश से निकाला गया है और किस तरीके से उसकी रूटिंग या राउंड ट्रिपिंग तय हो रही है, और कोई उसके ऊपर कदम नहीं उठाए गए। साथ ही एनडीए के समय पे एक बेहतरीन तरीके से अधिक रोजगार बढ़े तो कई ऐसे प्रावधान हुए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए गए, खोले गए, जिसमें गोल्डन क्वाड्रिलैटरल एक अपने आप में है, और उस गोल्डन क्वाड्रिलैटरल से बहुत सारे जॉब्स और रोजगार बढ़े थे। उस तरीके का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट इस सरकार ने नहीं बनाया है। साथ ही आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पर सबसे अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तकरीबन 700, और 2 लाख सीटें खराब जाती हैं, और उसमें बच्चों के पास जगह नहीं है, प्रावधान नहीं है, और 2 लाख सीटें, मतलब इस देश में अगर इंजीनियरिंग की सीटें खाली जा रही हैं तो कुछ जाहिर सी बात है बहुत गहरे तौर पर इस देश की समस्या है, और बहुत गहराई से इस देश में जो गलत आर्थिक व्यवस्था है वो काम कर रही है। साथ ही तमिलनाडु और कर्नाटक और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर एमबीए जो बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर कॉलेजेस हैं वो बंद हो रहे हैं। 113 कॉलेज पिछले 6 महीनों के अंदर बंद हो चुके हैं। जो टेक्निकल ट्रेनिंग वाले हैं वो कॉलेजेस पे कॉलेजेस बंद कर रहे हैं, जबकि 2012 और 2013 पूरे साल का जो डाटा था उसमें तकरीबन 100 कॉलेज बंद हुए थे, लेकिन अभी 6 महीने के अंदर ही 113 कॉलेज बंद हो चुके हैं। ऐसे में जब एस्केप वेलोसिटी और तमाम इस तरीके के विषय उठते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सरकार एस्केप करने की कोशिश कर रही है और एस्केप करना चाहती है इस देश की जो भारी समस्याएं हैं उनसे, और उसी एस्केप के तहत वो तमाम चीजों को अपने नाम पर लिखवाना चाहती है जिसपे इनका योगदान बहुत कम या बहुत ही कम के बराबर रहा है, और उसका श्रेय लेना चाहती है। अगर विषय करें आरटीआई का, तो आरटीआई का जो माहौल इस देश में बना वो 1990 का माहौल था। सुप्रीम कोर्ट के उस पे जजमेंट्स आए, और बावजूद उन सब चीजों के एनडीए की सरकार इस पे बिल लेके आई, और उससे पूर्व में भी और नोटिफिकेशन जारी किए गए, और तमाम इस तरीके के प्रावधान इस देश में रहे जिसके तहत आरटीआई जो इस फाइनल शेप में पहुंची वहां तक पहुंची, और बहुत से लोग इस पे सक्रिय रूप से काम करते रहे। और आरटीआई का अगर इतना ही विषय उठाया गया है और उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी द्वारा, तो उनसे सिर्फ मैं ये जानना जरूर चाहती हूं कि वो कहते हैं कि देश में जो भ्रष्टाचार है वो आरटीआई से काबू हुआ, तो फिर उसका फॉर्मूला बता दें कि बावजूद उस आरटीआई के 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ का घोटाला, कोयला घोटाला और तमाम घोटाले करने में
यूपीए की सरकार किस तरीके से सक्षमता प्राप्त कर सकी, वो भी देश जानना चाहता है, जिस आरटीआई का वो श्रेय लेना चाहते हैं। जहां तक फूड सिक्योरिटी बिल की बात है, तो फूड सिक्योरिटी बिल इसी सरकार ने 2 साल पहले तक, जब केंद्र में सरकार यही थी और सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा था कि आप जो अनाज सड़ रहा है गोदामों में उसे आप बांट दीजिए, किसी के काम आएगा, तब इस सरकार ने उस अनाज को जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं उनको बेचना बेहतर समझा। और अभी फूड सिक्योरिटी बिल की बात तब हो रही है जब इनके अपने महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि फूड सिक्योरिटी बिल एक खाली कागजी बिल रह जाएगा क्योंकि उसको चलाने के लिए पैसा तक नहीं है। जिस तरीके की चीज आधार कार्ड को लेकर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया है और आधार कार्ड की अनिवार्यता ये किसके लिए रोजगार का जो प्रावधान है वो किया गया है आधार कार्ड को कंपलसरी बनाने के तहत, जब इस देश में इलेक्शन कार्ड पहले से मौजूद था। और किसी प्राइवेट कंपनी को इस तरीके के चीजें देना वो अपने आप में एक सोचने का विषय अलग बनता है। कहने को बहुत कुछ है इन सब विषयों पर, लेकिन जब चेकर्ड इतिहास की बात की जाती है तो मैं बहुत पुरातत्व में ना जाकर, पुराने इतिहास की नहीं लेकिन आधुनिक इतिहास की बात जरूर करूंगी। तो चाहे वो चेकर्ड इतिहास हो, डबल चेकर्ड इतिहास हो, बल्कि कांग्रेस से इस्तीफा देकर बाहर जाने का, जब सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का विषय था, चाहे वो विषय हो कोर्ट के अंदर एफिडेविट बदलने का, चाहे वो विषय हो किसी आतंकवाद को रंग देने का, और चाहे वो विषय हो रुपए की कीमत को गिराने का, उस सब में एक ही इतिहास कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आपके प्रश्नों के लिए आप आमंत्रित हैं, जो भी कोई प्रश्न हो आपके, आप पूछ सकते हैं। वही डबल चेकर्ड इतिहास, वही इतिहास दोहराया जा रहा है जिसके तहत जो सरकार है वो अपनी एस्केप वेलोसिटी ढूंढ रही है, और वो जुपिटर की हो या प्लूटो की हो, उसी एस्केप वेलोसिटी को काबू करने के लिए ये तमाम दल उनको वो एस्केप वेलोसिटी प्रदान करने में सक्रिय हैं। और वो सक्रियता दिखाई दे रही है कि चाहकर जिस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग हो केस बनाने के लिए या केस बंद करने के लिए, वही लगातार यूपीए 1 और यूपीए 2 का इतिहास रहा है और उसी के तहत ये सब किया जा रहा है। देखिए, जहां तक तीनों बराबर या महान क्या विषय है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि एक बात तो कल चिदम्बरम जी ने मान ली कि वो उन्होंने एक चीज और कही कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने सबको एक कर दिया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक कर दिया है। तो वो जो डिविसिव फोर्स लगातार बोलते थे, तो कम से कम यूनिफाइंग फोर्स तो बोलना शुरू कर दिया है। और मतलब एक अंग्रेजी में कहावत है कि जेलसी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन। तो अब चाहे उनको कितनी ही तकलीफ हो, अब सुबह शाम उनका मोदी जी के नाम से शुरू होता है, अंत भी मोदी जी के नाम से होता है, तो उस बात की हमें खुशी है। और जहां तक किसी की महानता का विषय है, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे जैसा क्यों होगा, हर व्यक्ति अपने जैसा होगा, और हर व्यक्ति जो देश का एजेंडा है, जो देश का फॉर्मेट है, उसको सामने रख के अपने समय अनुसार काम करेगा। और तीनों का व्यक्तित्व अपने आप में अपने समय अनुसार महान है और अपने तरीके से। और आज देश को जिसकी आवश्यकता है, वो तो बहुत सारे लोग और कह रहे हैं कि जो कमजोर नई दिल्ली है उसी के रहते पाकिस्तान और चीन जैसी चीजें जो है वो एक सिम्टम्स के रूप में
सामने आ रहे हैं और इसीलिए दिल्ली को और नई दिल्ली को खास तौर पर एक सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता है और इसीलिए सब लोग एक ही तरफ आंख लगा के टकटकी करके देख रहे हैं। हरीश लखेड़ा जी, हाँ एक मिनट आपका। देखिए, वो आंध्रा के बीच का मामला है, चाहे वो आगे भविष्य में क्या होना है, कौन अनशन तुड़वाने जाएगा या नहीं जाएगा, वो विषय जब आएगा तो आपको बताया जाएगा। अभी देखिए, हमारा जो हम फेवर में है, लेकिन जो जनता की एस्पिरेशन है हम उसके बिल्कुल फेवर में है। तेलंगाना की एस्पिरेशन है और उसमें हमारा ये मानना है कि इन सब मुद्दों को अनाउंसमेंट से पहले सुलझाने की आवश्यकता थी और वहां पर केंद्र सरकार ने बहुत भारी गलती की है कि जो तमाम जुड़े हुए मुद्दे थे उनको सुलझाए बिना, उनको बात उठाए बिना जिस तरीके से अनाउंसमेंट्स की हैं उसकी वजह से आज आंध्र प्रदेश जल रहा है, जिसको रोका जा सकता था। देखिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर दो राय नहीं, यहाँ पर कई राय हो सकती हैं और उन सभी राय को एक तरफ रखकर एक टेबल पे डिस्कस करना, वही हमने पहले भी कहा कि तेलंगाना बनना चाहिए क्योंकि कुछ लोग तेलंगाना के पक्ष में हैं, बाकी सबकी क्या क्या हिस्से हैं, किस किस तरीके से उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बकायदा कमेटी बैठनी चाहिए, बकायदा सब पक्षों से बात की जानी चाहिए, बकायदा फाइनेंस से लेकर कैपिटल से लेकर तमाम चीजों के आपको तय पहले करना होगा अनाउंसमेंट से पहले। यहाँ अनाउंसमेंट पहले होता है, कार्रवाई बाद में होती है, उसकी वजह से सारी मुसीबत खड़ी हुई है और वही हम आज भी मानते हैं। मिस्टर मजूमदार, नहीं, अभी उस पर हमारा कोई विचार बना नहीं है। मिस्टर मुमताज आलम, देखिए, डस्टबिन में तो ऐसी एडवाइजरी डलनी ही चाहिए क्योंकि जब देश में लोकतंत्र की बात होती है और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात होती है तो इस तरीके की एडवाइजरी डस्टबिन का ही रुख करेगी। और उस रुख का कारण है कि इस सरकार ने इसका मतलब दो चीजें मानी। पहली चीज ये मानी कि इन्होंने मुसलमानों को गैर कानूनी तौर पे फंसा के रखा और फिर ये कहा कि जो हिंदू है वो झूठे इल्जाम में अंदर रह सकते हैं लेकिन मुसलमान को नहीं रहना चाहिए, जबकि देश का पक्ष होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी भी गैर कानूनी तरीके से जेल में अपराध में अंदर ना रहे, गैर कानूनी तरीके से किसी का शोषण ना हो और अगर जिसका शोषण हो उसको बाहर तुरंत निकाला जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो ये जो सांप्रदायिक सरकार है वही मैं लगातार कहती हूं कि कांग्रेस से बढ़कर कोई भी पार्टी इस देश में सांप्रदायिक नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है, चाहे इनका राइट्स का इतिहास हो, चाहे इस तरीके की बेतुकी बातें करने का इतिहास हो, चाहे आतंकवाद को रंग देने का काम हो, ये सब काम इस पार्टी ने किए हैं। पूछिए। हाँ, विकास जी। देखिए, नहीं, ये दाग तो आप गिनना शुरू करें। 47 से देश का बंटवारा, 1992 में कौन मुख्यमंत्री था, 1984 के दाग किसके ऊपर है, 2012 के दाग किसके ऊपर है, मुजफ्फरनगर के दाग किसके ऊपर है, आप गिनते रहिए। मैं तो थक चुकी हूं। कोई 700 बड़े सांप्रदायिक
घटनाओं का इतिहास कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। तो इतने दागों के बाद और फिर जब इनसे पक्ष नहीं थमता तो वो कोयले की घोटाले की कालक चेहरे पे आ जाती है। तो ऐसी कालक के बाद कोई दूसरे की दाग की बात करे तो मेरे को लगता है वो अपने आप में बहुत बड़ी बेईमानी है। मैं इनका जवाब दे दूं, अंग्रेजी में दे देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे ले लेती हूँ। See, there are a couple of things you have flagged. First thing you have flagged is that I think I'll straight away come to 2004, 2009 and 2014 elections. And in that context, I can say that the country has paid a heavy price of re-electing this government. And today, we as the citizen of this country neither have affordability nor the wish to pay the price, because even the rupee has been devalued. The cost of re-electing this government has been paid really heavily by this government, by the people of this country. Job loss is the biggest scenario, which is an answer to this very question. That somebody who is bad for the country, why should that person or that government be re-elected? Somebody who's causing a drain on the Indian economy, somebody who's failed on the economic front completely. I think nothing can be more secular than the rosy roti or kapda of anybody. So रोजी चली गई तो रोटी और कपड़ा कहाँ से मिलेगा, उसका इंतजाम ये सरकार नहीं कर पाई है। और इसीलिए जो कीमत हमने एक देश के नाते अदा करनी थी सरकार को 2 बार चुनने की, वो हम अदा कर चुके हैं। और आज ना तो इस देश की जनमानस की इच्छा है और ना ही हैसियत है, क्योंकि रुपए की कीमत भी बुरी तरह गिर चुकी है। विकास भदौरिया। नहीं, भर पेट कहां से खाएंगे, इंतजाम कहां से होगा? और भरपेट खाएंगे तो वो अपनी बात कर रहे हैं कि देश की बात कर रहे हैं, देश की जनता को खाना खिलाने की बात कर रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी खाने की बात कर रही है? ये इसका जो स्पष्टीकरण है वो तो राहुल गांधी खुद ही देंगे तो बेहतर है। और इसीलिए मैं जानना चाह रही थी, जो मैंने प्रश्न शुरू में किया था, कि भाई आरटीआई लाए ताकि सब कुछ आपको पता चल सके देश के शासन के बारे में। ऐसा आरटीआई कि आपको गांधी नेहरू परिवार का कुछ नहीं पता चल सकता, और बावजूद उस आरटीआई के कोयला घोटाला, रेल घोटाला, तमाम घोटाले इस देश में हुए, तो वो कैसे हुए वो बताए ना, कि आरटीआई कहां गई और क्यों उन घोटालों पर कोई रोक नहीं लग पाई। पीछे, हाँ, बहुत देर तक बैठने वाले हैं आप, बहुत देर तक बैठने वाले हैं आप। हाँ, पीछे। किसकी सरकार रही ये भूल जाते हैं कि ये कहां बैठे हैं। ये भूल जाते हैं कि 57 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, और 67 वर्षों में जो सरकार रही है उसमें भी बहुत सारी सरकारें इनकी सहमति से रही हैं, इनके सहयोगियों की रही हैं। तो अगर आज दलितों की ये स्थिति है इस देश के अंदर, तो उसके लिए सीधी सीधी जिम्मेवारी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की है, जिसने न केवल दलितों को बल्कि हिंदुओं को कभी दलित, कभी यादव, कभी कुर्मी, कभी किसी और के नाम पर बांटा, और समाज को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में लगातार बांटा। और आज जो देश की स्थिति है, वो चाहे दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, वो इनकी आर्थिक नीतियां और घोटालों की वजह से है, और इसीलिए ये सीधे तौर पर उन सब चीजों के लिए जिम्मेवार है। शेखर, I think that question can better be answered either by the army sources or the PMO. But so far as
we are concerned, Kiran sector incursion is a very serious issue because 14 days of engagement is what has been going on, more than 14 days with Pakistani infiltrators. And our question still remains that if policies of the past have not worked, should the policies for past 9.5 years be not changed? And that is what we as a country, as India, need to take charge of, because we can't allow anybody to intrude on our borders and dictate terms on us and yet be our guests and we are made to serve that person and host such people. We should not. Mr. Ravinder Singh, last question. देखिए मोदी क्या, आप मेरे को, मैं इसका जवाब ऐसे बहुत तरीके से दे चुकी हूं, मगर आप दोबारा चाहते हैं तो मैं दे देती हूं कि आडवाणी जी ने अपने समय में जो करना था वो किया, वाजपेयी जी ने जो अपने समय में करना था किया, अब मोदी जी की बारी आई है, वो क्या करेंगे? तो आप सुबह, वो एक कहावत है, कहावत क्या मतलब, एक वाल्मीकि जी की कहानी है कि वाल्मीकि जी जब डाकू से ऋषि बने तो उनसे राम नाम नहीं लिया जाता था, तो उनको कहा गया कि भाई आप मरा मरा बोलिए क्योंकि आपके बस की राम राम नहीं है, तो मरा 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 तो वो राम राम ही निकलेगा। तो आजकल इन्होंने मोदी जी के नाम का जाप शुरू किए हैं, तो हो सकता है किस्मत बदले, कुछ अच्छी चीजें आए देश में जिसकी सबको इंतजार है। थैंक यू।